Describe packet switching. Describe packet switching. Packet switching क्या होती है? A circuit does not have to be established in the start of the communication. Packet switching में क्या होता है? जब बहुत बड़ा सारा डेटा होता है, all the complete data, it is divided into small pieces. Each piece is known as a packet. There are additional information that is attached with the packet. Additional information is known as the header. Header includes source IP address, destination IP address, packet sequence number, checksum, hop number, and checksum. Error checking technique. It can be checksum or it can be cyclic redundancy check, CRC. Cyclic redundancy check is the number of ड्रम है, number of cycles नहीं है, it is the number of bits that is counted and it is represented in hexadecimals. ठीक है, total number of packets वो भी हेडर के अंदर शामिल होता है. and it is sent each router it will initially check. ये जो पैकेट सेंड किया जाता है with the packet sequence number, with the packet's source IP address, destination IP address, it is to make sure that the packets reach at its appropriate destination. Reliability of the data, it is made sure by the TCP protocol, transmission control protocol, ensures that the data packets reach at its appropriate destination. There are two protocols that are used in transport layer. One protocol is TCP, the other one was UDP. Transport layer में TCP and UDP. User datagram protocol was unreliable transmission of the data, but while TCP was the reliable transmission of the data. ठीक है? और पैकेट स्विचिंग में it is not necessary for each packet to take the same path. Yes or no? Packets may go from any path if the data packets reaches at its destination out of order, which are reassembled, reordered at the receiver's end. ठीक है, साथ ये गंज. Data to be sent is divided into packets that can travel along different routes from node to node, from node to node. Got it? What was node? It was any device that is connected in a network that has the capability of receiving or transmitting the data. It is known as a node. So मैंने कल भी कहा था, I use this word of node frequently. Node is any device that is present in a network that has the capability of receiving or transmitting. If it is receiving something, it will have a source IP. If it is transmitting something, it will have a destination IP. Packets are reassembled in correct order at the receiver's end, and the receiver waits until all the packets are received. This is what? Packet switching. Explain why the company uses packet switching to send and receive the other data. क्यों करती है? क्यों करती है? Because it allows for error checking. Real-time transmission is not required. Why? In real-time transmission, circuit switching is used, in which one complete path, dedicated path, is established prior to the transmission. The path consumes the maximum or the whole bandwidth. ठीक है? The path remains intact until the session lasts. And in packet switching, it does not matter if the data reaches out of order. It is reassembled at the receiver's end. And also in packet switching, the bandwidth can be shared. Bandwidth can be shared. Same path can be used by multiple data packets. What is meant by user-defined data type? User-defined, user is not user. User is programmer. Programmer define करेगा data type. User को तो पता ही नहीं data type क्या होती है. ठीक है? It is in this context, user is programmer. कल मैं context की बात बता रहा था, अगर आपको याद हो तो. जी फैजान याद है कि नहीं? Context की बात बता रहा था कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा था ना out of phase. आपको याद है वो word? मैंने कहा था नहीं, out of phase का लफ्ज नहीं है. सिंक्रोनाइज्ड या अनसिंक्रोनाइज्ड का लफ्ज कहा जाता तो वो ज्यादा बेहतर है. इन फेज आउट फेज वो फिजिक्स के लिए. तो यहां पर भी जब हम लफ्ज इस्तेमाल करें, यूजर का मतलब है प्रोग्रामर. तो हर क्लास में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, हर सब्जेक्ट में, तो आपको वोकैबुलरी भी उसी की इस्तेमाल करनी पड़ती है. मैं अक्सर औकात कहता हूँ, जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो सोशियोलॉजी में आप कंप्यूटर के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे. आप उधर नॉर्म, सोसाइटी, वैल्यूज, मॉरल, समझे, नॉर्म्स, है ना, समझ आ रही है कि इस तरह के अल्फाज वहां पे, एथिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं. क्लियर है ये बात?
And what is user defined data type? User defined data type is programmer data types that are defined according to the programmer's requirement, which are derived from one or more already existing data types, and it is also used to extend the use of the data types, or that are defined for specific applications. A pseudocode declaration for a user defined data type for the month of the year is as follows. Given number of month है, number of month are given, numbers given है ना, क्या sequence में out of sequence है, sequence में, तो it is enumerated. कौन सी डेटा टाइप है? enumerated डेटा टाइप। दो तरह के डेटा टाइप्स हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में, दो हैं, कॉम्पोजिट और नॉन कॉम्पोजिट। जो नॉन कॉम्पोजिट है कौन कौन से वाले हैं? पॉइंटर और इन्यूमरेटेड। पॉइंटर और किसी पे डिपेंड, किसी पे कंपोज नहीं करते। जो कंपोज करते हैं वो कौन है? रिकॉर्ड, सेट्स, ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस एक्सेट्रा। एंड दे आल्सो गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योर ओन डेटा टाइप्स। रिकॉर्ड जिस तरह से आपने कहा था, रिकॉर्ड के अंदर अरे तो पहले से बिल्ट इन डेटा टाइप थी। अरे, अरे क्या होती है हसन? अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा टाइप 5 हैं, उस 5 का स्ट्रक्चर तब्दील हो सकता है, वो एज अ वेरिएबल भी आ सकता है, एज अ मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप कैन बी कंसीडर्ड एज एन अरे। मार्क्स ऑफ द होल क्लास, यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर मल्टीपल मार्क्स। मार्क 1 मतलब वेरिएबल्स आपको मल्टीपल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ना नेम एंटर करेंगे, मार्क्स एंटर करेंगे, तो वन ऑप्शन इज टू डिक्लेयर मेनी वेरिएबल्स, एक ऑप्शन ये है। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर 500 बच्चे हो गए तो क्या 500 वेरिएबल्स कहां से बनाएंगे आप? इनपुट करना होगा तो 500 नाम लिखेंगे, आउटपुट करना होगा 500 नाम लिखेंगे, ऑपरेट करना होगा 500 नाम लिखेंगे? नहीं, हम एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अरे में, उसको इंडेक्स दे देंगे 1 से लेके 500 तक का, उसी को फॉर लूप से चलाते रहेंगे तो वो हर दफा चलता रहेगा। समझ आ रही है बात ये? नहीं, दो डेटा हो तो दो अलग अलग किए जा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा सारे डेटा आ जाए तो उसके लिए फॉर लूप लगाना हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है। होता कि नहीं होता? ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक बात ये होगी। दूसरी चीज, फिर हमने इसके बाद बात की थी तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की, यूजर डिफाइंड, हाँ डेटा स्ट्रक्चर में अरे की बात कर रहे थे। अब रिकॉर्ड कौन सा है? रिकॉर्ड में सारे मार्क्स के नहीं होंगे, आप चेंज भी कर सकते हैं। एक वेरिएबल होगा, उसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होंगी एक ही वेरिएबल की। समझ आ रही है कि नहीं? जो एक स्ट्रिंग भी हो सकती है वैल्यू, एक इंटीजर भी हो सकती है, और एक बूलियन भी हो सकती है, और उसी तरह के मल्टीपल आपके रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। इर्तजा इधर ध्यान दो। आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो अब ये इन्यूमरेटेड है, बिल्कुल सही है। कहता है कि जी राइट अ सूडोकोड स्टेटमेंट, राइट अ सूडोकोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल करंट। स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट हुआ है? अच्छा, राइट अ सूडोकोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल करंट मंथ ऑफ डेटा टाइप मंथ्स। पहले उसने मंथ के नाम से डेटा टाइप बनाई हुई है, उसका नाम है इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, जिसमें वैल्यूज है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन एंड पे दिसंबर। इन्यूमरेटेड में एक और चीज भी होती है, जो वैल्यूज होती है वो सीक्वेंस में काउंट की जाती हैं, एज एन इंडेक्स काउंट की जाती हैं। तो आप इसमें लगा भी सकते हैं कि इफ मिसाल के तौर पे इफ मंथ इज ग्रेटर देन मई एंड लेस देन सितंबर, देन वेकेशन इज इक्वल्स टू ट्रू। जून, जुलाई, अगस्त। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो वो इसको इन तरह से भी काउंट कर सकता है। ठीक है, write a pseudocode statement to declare, and since they are not string so they must not be enclosed in double inverted commas. ठीक है, इतना ध्यान के। write a pseudocode statement to declare a variable current month of data type months. declare इधर ही लिख देते हैं, declare करंट मंथ कॉलन मंथ है, मंथ्स है, मंथ एसबीएस आप। ठीक है जी, तो ये कॉलन भी याद रखें, डालते होते हैं। ठीक है, और आज मार्केट्स में इंक भी नहीं है। राइट अ सूडोकोड स्टेटमेंट टू असाइन द वैल्यू अगस्त टू द वेरिएबल करंट मंथ। अब वो ये उसी तरह से है, करंट मंथ को वैल्यू असाइन करनी है।
विदाउट एनी स्पेस, नो स्पेस, ठीक है। एरो लगाना इक्वल टू नहीं लगाना, ठीक है। सूडो कोड में एरोज लगाने की आदत डाल लें। वैल्यू कौन सी देनी है मुझे बताओ, उसने अगस्त क्यों बोला है? वैल्यू असाइन करो, क्यों? गलती करोगे कौन सी वाली? ये वाली करोगे गलती, नंबर काटेगा आपके। नहीं डालने, मुझे पता है मैंने गलत डाले। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने क्यों आपसे सवाल पूछा है कि आप अगस्त को असाइन करें, तो बड़ा आसान था, क्योंकि आप ये गलती करेंगे ये वाली, तो इसलिए ये गलती नहीं करनी। तो मैंने जानबूझ के गलती बताई है कि आपने नहीं करनी है, ठीक है। कहता है मोस्ट डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स आर यूज सिस्क कंप्यूटर्स, सिस्क कंप्यूटिंग और आर्किटेक्चर। मोस्ट स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स यूज रिस्क। स्टेट 4 फीचर्स दैट आर डिफरेंट फॉर सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर। अब 4 डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। सो रिस्क की इंस्ट्रक्शंस फेवर होती हैं, सिस्क की इंस्ट्रक्शंस ज्यादा होती हैं। रिस्क के अंदर मेनी रजिस्टर्स होते हैं, उसमें लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो सा है वो रिस्क के अंदर क्या कहते हैं उसको, एक ही जैसा कांस्टेंट है, ठीक है। उसमें वेरिएबल कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है या कंस्ट्रक्शन लेंथ, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के यहाँ पे फीवर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं, वहां पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड्स रिस्क के कम है, सिस्क के ज्यादा है, ठीक है। इसमें बेटर पाइपलाइनिंग है, उसमें पाइपलाइनिंग डिफिकल्ट है, ठीक है। और लेस कॉम्प्लेक्स सर्किट रिक्वायर्ड होते हैं, अगर मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं। इट मेक्स यूज ऑफ मोर यूज ऑफ रैम, वहां पे लेस यूज ऑफ रैम, मोर यूज ऑफ कैश। कैश मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल होती है, रैम कम, यहाँ पे रैम ज्यादा इस्तेमाल होती है। सो रेस दिमाग चलें। व्हाट इज पाइपलाइनिंग? एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पाइपलाइनिंग। इट इज इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। सबसे पहली मार्किंग स्कीम में हमेशा लिखना है पाइपलाइनिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, ठीक है। इट इज एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज वन इंस्ट्रक्शन इज स्प्लिट अप into a number of stages. First stage of an instruction is completed, the first stage of the next instruction can start executing. When first stage of the current instruction is completed, then the first stage of the next instruction can start executing. तो ठीक है, एक तो करने जा रही है और कर चुकी है, तो ये अल्फाज का जरा तवज्जो रखिएगा। और in other words you can say that another instruction can start executing before the previous instruction is finished or executed. Next is, ये वही वाला सवाल है जो मैंने क्लास में आपको बताया था कि you can just change the sequence of the registers, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, explain why pipelining fails for the first 2 instructions, क्यों फेल हो जाती है। The result of the first addition is not stored in the R3 before the next instruction needs to load the value from the R3. R3 में भी वैल्यू स्टोर नहीं हुई भी होगी और उससे लोड कर ली जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। डेटा डिपेंडेंसी इश्यूज आएंगे इसके अंदर, और यूं समझ लें कि in other words you can say that कि R3 will be fetched in the same clock cycle while it will be performing addition. अच्छा, अब आते हैं सर अपने काम की तरफ आगे। आज हमारा था चैप्टर नंबर 2। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2, दैट इज बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। अच्छा, ये वाली तमाम जो बातें हैं बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट की, ये गेम शुरू होती है जब आपका एएस खत्म होता है। इसमें हमने 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। मेन जो टॉपिक्स है, एक है आपका हाफ एडर, एक हम लोगों ने पढ़ना है फुल एडर, एक हम लोगों ने पढ़ना है एसआर एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। ये हर चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक्स इस तरह के हैं कि हर पेपर में आपको इनकी किसी न किसी शक्ल से आपका सामना करना पड़ेगा। हाफ एडर, फुल एडर, जेके फ्लिप फ्लॉप। तीसरा नहीं, तीसरा तो ये हो जाएगा ना, तीसरा ये हो जाएगा, और चौथा जॉनसन कार्नोफ मैप्स, ठीक है, कार्नोफ मैप एंड simplification of
लॉजिक सर्किट्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स, ये चीज आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। अब सबसे पहले जरा बेसिक्स की तरफ आते हैं। बेसिक एडर, हाफ एडर, फुल एडर, बिट्स को ऐड करने वाला हाफ एडर। कार, NAUGH, कार्नोफ के मैप्स कहा जाता है। जो बातें यहां पे पढ़ाऊंगा, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन योर यूनिवर्सिटीज। हर CS वाला बच्चा, हर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाला बच्चा एक कोर्स पढ़ता है, उसका नाम है डिजिटल लॉजिक डिजाइन, ठीक है। जो डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ता है उसमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पूरी गेम में यहां से समझा दूंगा, हाफ से ज्यादा सब्जेक्ट की गेम समझा दूंगा इसी के अंदर, हाफ से ज्यादा सब्जेक्ट इस एक चैप्टर में समझा दूंगा आपको मैं। कार्नोफ, KARNAUGH, कार्नोफ एक साइंसदान का नाम था। जिस तरह यहाँ पे J and K, जैक किल्बी, ये भी दो साइंसदान थे। तो वेल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? अवैस फिर मैं वही बातें बोलूंगा ना, मुझे पता लग गया कि 4 बज गए। हाँ, अम्मी की कॉल तो नहीं थी? अम्मी की थी, अच्छा। A, B and Y, AND गेट, OR गेट and NOT गेट, AND गेट, OR गेट, NOT गेट and OR NOT। एक्सप्रेशन बुलियन क्या है? A डॉट B। एक्सप्रेशन क्या है? A प्लस B। एक्सप्रेशन क्या है? A कॉम्प्लीमेंट या A के ऊपर प्राइम, A बार या A प्राइम। यहां पे आउटपुट X विल बी 1 when all inputs will be 1। अब मैं यहां पर तो A डॉट B लिख रहा हूं, लेकिन आउटपुट 1 होगा जब 50 इनपुट्स भी लगा दूं, सारे 1 होंगे, तब सिर्फ आउटपुट 1 होगा। यहां पे आउटपुट X will be 1 when any one of the inputs is 1। कोई एक इनपुट भी क्या है 1 हो जाए तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? आउटपुट इज ऑपोजिट ऑफ इनपुट। इनपुट जो भी होगी आउटपुट उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। देन देयर कम्स अ थर्ड गेट, A B X। X is equals to A dot B complement plus A complement dot B। Output will be 1। Output will be 1 when inputs will be different। Output will be 1 when inputs will be different। Also note that this thing is equal to this thing, right? It is a simplified form of this circuit, ठीक है। Similarly A
बी और गेट, यहां पे x आता है, इट इज इक्वल टू, सिर्फ सिंप्लीफाई करके आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी एंड सी, दिस इज ऑल्सो x। समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया सारों को? ये हो गया। एनी कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, सवाल पूछें, सवाल पूछें। दिस वन इज ज़ोर, दिस इज ज़ोर, दिस इज अनदर। ये ब्लू से अलग लिखा हुआ है, ब्लैक वाली अलग चीज है। दिस वन इज नॉट गेट। यू नो, आप नॉर बना सकते हैं, इसके आगे नॉट लगा के नॉर बन जाएगा, इसके आगे नॉट लगा के नैंड बन जाएगा। नैंड में सिर्फ तब्दीली होगी कि यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक अदद नॉच लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसका क्या कहते हैं, इसको नॉच कहा जाता है। ठीक है, नाम नॉच है इसका। बेसिक्स हैं ये सारी, कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो पूछें, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह।